Hello, hi, welcome, namaste. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. So, as you all know, that I am conducting a podcast talk show, Joyful Journey: Your Path to Happiness. Today, I have another guest with me, Miss Megha Saxena. So, firstly, thank you so much, Megha ji, for coming and accepting my invite in a short period of span. Thank you so much for inviting me. I'm really excited. My pleasure too. So, before we start on this, let me introduce Megha ji. Megha Saxena Valvi, a chartered accountant and a company secretary with over 11 years in banking, is passionate about parenting and education. She is a certified parenting coach, educator, trainer, career strategist, child psychologist, and CBT practitioner. Founder of Pavina Pass, she promotes positive parenting. Megha ji is dedicated to understanding parent child dynamics and serves as a teen life coach. Wow. Offering a safe space for teenagers. As a mental health awareness ambassador, she counsels on the conflicts, stress, and other mental health issues. So, this is a very great profile I have of Megha ji. Thank you so much, Megha, for coming here. Thank you so much. And as you know, I keep looking for opportunities to come and talk on this topic. And thank you for giving me this opportunity. Thank you so much for inviting me here. मैंने आपके सारे एपिसोड्स देख लिए हैं अभी तक. So yes, let us do this today. For sure, and this will be the wonderful one. So today's topic for this is, as you all know, that she is a teen life coach. The topic also is of teen intellectual health, stress and esteem. कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमारे को पता नहीं होता, एज अ पेरेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन टीनेजर्स जो उस चीज को स्ट्रगल करते हैं, तो दे डोंट फील ओपन अप टू स्पीक टू एवरीवन. तो उसी के ऊपर आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं. एंड shall I start with my first question? Yes. Yeah. So, Megha ji, what are some of the biggest concerns and thoughts that occupies teenagers' mind today? So whenever I try to explain this to teenagers, so I make a circle Okay. and divide it into three parts. Okay. The first part I tell them that it is, hormonal and physical growth that is happening in their body right now. This is the age from 13 to 20, 21. सब hormonal changes हो रहे हैं उनमें body में physical changes begin to happen. So, and because of that, they become very moody. They feel sad, happy. They feel elated one moment and then they feel sad the other. Then they also have attraction to opposite sex, फिर crushing over or सब कुछ चल रहा होता है साथ में. So all this and then making friends, making new friends, impressing the opposite sex. तो ये सब चल रहा होता है. So this is one part that keeps occupied in their brain. The second part I tell them is this is your self identity. Now they are, abhi they are blooming out. They are coming out of their family cocoon and they want to explore their identity, and which is very much different from what their family is right now. और for जो as बचपन में जैसे थे उनका वो exactly opposite try करना होता है कि मैं अलग behave करके देखूं. And they try to idolize any some hero or someone they idolize, or they try to behave like their teen peers. So this is the time when they are trying to build their own identity separate from their family or their siblings जो इतने सालों से चलता आ रहा है. So that is one thing that keeps them occupied all the time. And the third is where I tell them it is your professional identity development time. So you have to spend a lot of time. This is the time where you study, where you decide which career you want to choose. कौन सा प्रोफेशन में आपको जाना है, आपकी लाइफ की अर्निंग आप कहाँ से करने वाले हो. और ऐसी अर्निंग जिस गुड अर्निंग हो. It should have good name, fame. फिर it should match your parents' expectation. Then it should also match what you are passionate about. Then it should also match, आपकी family के values. तो ये सब का जो building age है, वो ये है, teenage age. तो this is where you should occupy your brain also. तो ये तीनों चीज मिला के आपका ब्रेन है इस वक्त. तो उसमें फिर मैं और आगे ऐड कर देती हूँ कि ठीक है, हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस तो होते रहेंगे.
उसमें Right. आपका एनीवेज कुछ हाथ नहीं है, तो उस पे आप ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो, अपना ब्रेन का स्पेस उस पे ज्यादा मत लगाओ। द Right. सेकेंड इज अगेन सेल्फ आइडेंटिटी। वो भी जब आप 25-30 साल के हो गए तब तक ही बिल्ड हो पाएगी, बिकॉज अभी आपका लॉजिकल ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है, आप अभी तक इमोशंस पे ही सोच रहे हो। तो एंड दैट विल ऑल्सो हैपन। एंड यही अगर सेल्फ आइडेंटिटी बनाना इज कॉजिंग सम रिबेल और सम डिस्ट्रेस इन योर फैमिली, तो उसमें भी आप एक स्टेप बैक लेके फिर प्रोसीड करो। बट ये जो करियर बिल्डिंग वाला जो पार्ट है आपके ब्रेन का, तो उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये जो एज चला गया फिर वो आप 25-30 साल में नहीं कर पाओगे। आप सोलमेट और लाइफ पार्टनर आप 25-30 साल में मिल जाएगा, बट करियर बिल्डिंग का एज ये है। पढ़ाई जो आपको करनी है या आपको जो भी पैशन फॉलो करना है, उसका बेस बिल्डिंग का एज ये है। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट। इसको आप 60% कर लो वो सर्कल में, बाकी को 20-20 का अलॉटमेंट दो। दिस इज व्हाट आई गाइड एंड सजेस्ट ऑल द टीनेजर्स टू डू दैट। लवली सो एक्सप्लेनेशन, लवली। इतना मतलब क्लियरली आपने इस चीज को समझाया कि टीनेज का जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में वर्क करता है, और ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस और भी आते हैं उस लेवल पे जो उनको समझ में नहीं आता है। बट यस, पेरेंट्स एंड द एल्डर वंस आर सीइंग कि हाँ, बच्चों के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं तो हमको उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि एक तरफ से सेल्फ आइडेंटिटी बनाना, दूसरा तरफ से अपना करियर बिल्डअप करना, फिर इतने हार्मोनल चेंजेस, तो आई डू थिंक कि इस चीज में मतलब बच्चों को स्ट्रेस भी बहुत होता होगा। मतलब जैसे हार्मोनल चेंजेस इनके उसमें हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे इसमें स्ट्रेस भी बहुत हो रहा होगा। तो कुछ ऐसे आप कॉजेज बता सकते हो जिस वजह से ये स्ट्रेस आउट होते हैं? स्ट्रेस आउट तो देखो, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस ना अपने अडल्ट जैसा ही होता है इनका भी। हम लोग कैसे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ओवर थिंकिंग या ओवर एक्सपेक्टेशंस है या कंपैरिजंस है या हम्म। टू मच ऑन योर प्लेट, और जैसे कि एक्सपेक्टेशंस है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, तो ये सब तो एज एन अडल्ट आप भी फेस करते ही हैं। लेकिन जब टीनेज का जो होता है, अगर अडल्ट को अगर इतना स्ट्रेस हो रहा है ना इन सब चीजों की वजह से, तो टीनेजर को इतना होगा। तो ओके। बिकॉज वही उनका लॉजिकल ब्रेन अभी तक नहीं उतना डेवलप हुआ, दे आर ऑल स्टिल गेटिंग सो मच इमोशनल बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस, तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम्म। कॉजेज तो वैसे भी सबको पता होते हैं, और अगेन एडिशनल होते हैं उनको। अभी जैसे मैंने कहा करियर बिल्डिंग है तो वो प्रेशर है उनके पास। फिर कोई बुली कर रहा होगा उनको, जो वो मे बी अपने साथ पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो काइंड ऑफ स्ट्रेस होता है। राइट। फिर एक बॉडी इमेज स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है बच्चों में, कि दे आइडलाइज समवन ऑन इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर परफेक्ट दिखते हैं, फिर उनको लगता है कि हम ऐसे क्यों नहीं दिख रहे, हम ऐसे क्यों नहीं बिहेव कर रहे, या हम इतना अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। सो ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस है। एंड अगर हमको इतना फील होता है तो उनको इतना फील होता है, ये याद रखने वाली बात है एज अ पेरेंट एंड एज अ टीनेजर आपको भी, कि आप समझो कि आप क्यों इतना ज्यादा फील कर रहे हो, बिकॉज यू आर एट दिस एज। राइट। एंड उस हिसाब से आप उसको रिएक्ट करो, उस हिसाब से आप उसको हैंडल करो। राइट। राइट। दैट इज इट। मेघा जी, इफ यू डोंट माइंड, वन पर्सनल क्वेश्चन, आपके हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव टू। वन इज 12 एंड द अदर इज 6, बोथ ओके। डॉटर्स। ग्रेट, ग्रेट, दैट्स व्हाई यू हैव सो सच अ डीप नॉलेज, क्योंकि जो 12 में है वो तो ऑलरेडी टीनेज के उसमें जा रही है। हाँ हाँ, ये Great. सब बहुत सारे मेरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो जाते हैं और वहां से सीखना भी हो जाता है। राइट, राइट, राइट। जब मैं उनसे उनके फ्रेंड्स से बात करती हूँ तो यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ टीनेजर एज अ पेरेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एग्जैक्टली। अभी आपने जैसे शेयर किया कि उनके उसमें जो है मतलब हार्मोनल वो भी होते हैं और लॉजिकल माइंड सेटअप इतना नहीं होता, फिर साथ में बुलिंग भी होती है, फिर पेरेंट्स का प्रेशर, और वो प्रेशर भी उस टाइप का होता है कि बेटा 11th में क्या लोगे, कौन सा सब्जेक्ट, हाँ क्या करोगे आगे, सारा टाइम या तो फोन पे हो या फ्रेंड्स के साथ हो या कुछ उनके साथ कुछ हो भी रहा होगा तो दे डोंट इवन, मतलब उनका ध्यान ही नहीं जा पाता उस तरफ में। आई वोंट ब्लेम दैट, बट उनका ध्यान भी नहीं जा पाता। लेकिन उनको ये है कि बच्चा हमारा जो है या तो कॉमर्स या आर्ट्स लेके कुछ अच्छा वो बन जाए, एंड दे कीप ऑन मीन्स बम्पिंग ऑन इट कि हाँ ये करो, ये करो, ये करो। तो माई क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट थिंग इज, एक तरफ पीयर है, दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं, द टू पीज। बच्चों को किस चीज के लिए किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज देना चाहिए एट दिस स्टेज, क्या आप एडवाइस करोगे?
तो ये तो कॉमनली हर पेरेंट बोलता ही है, नजर आता है कि अब तो उसको सिर्फ फ्रेंड्स नजर आते हैं, हमारी तो कुछ सुनता नहीं है, फ्रेंड्स के पीछे ही पड़ा रहता है, हम तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। एंड देन ये सोच के समझ के पेरेंट्स अपने आप को थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करने लगते हैं कि अभी शायद इसे हमारी जरूरत नहीं है, या अभी अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, अब तो सुनता ही नहीं है। बट नहीं, मैं इसमें यहाँ पे ये एक फैक्ट देना चाहूंगी कि पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए, डेफिनेटली उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। Right. बिकॉज उनको अभी वो फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अभी वो रिलेशनशिप बनाना सीख रहे हैं खुद से, तो Right. वो है इम्पोर्टेंट। बट उनके लिए पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। वो बोल Right. नहीं पाते हैं या बता नहीं पाते हैं, लेकिन है वो जा मतलब दीज टीनेजर्स वांट टू लर्न कि पेरेंट्स क्या का ओपिनियन क्या है इस बारे में, उनको वो क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या एक्सपेक्टेशन है। यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि पेरेंट्स कुछ रूल बना दे हमारे लिए और हमको बता दे भाई हमने किस तरह से बिहेव करना है। वो रूल कितना फॉलो होता है वो बात की बात है, बट दे रियली वांट द Right. रूल्स टू बी सेट, द एक्सपेक्टेशन टू बी सेट, कि Right. ओपिनियन आपका पता चले। बिकॉज parents, they still look up to their parents, they still want to behave like their parents, they still want to know what their family value is। तो फिर वही है, फिर मैं टीनेजर्स को बोलती हूँ कि देखो, आप फ्रेंड्स आपके हैं, आप उनसे ये पता लगा सकते हो कि फैशन क्या है, ट्रेंड्स क्या है, या स्टडीज रिलेटेड आप उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, रिसोर्सेज कहाँ से लेनी है, या आप नॉर्मल गॉसिप कर लो, हैंग आउट करो, टाइम पास करो, पार्टी करो, बट यही इतना। बट अगर जो सीरियस डिस्कशंस है, जैसे करियर रिलेटेड डिस्कशन हो गया, या सब्सटेंस अब्यूज आजकल होने लगा है, तो उस रिलेटेड अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है या इंफॉर्मेशन लेनी है, या आपने आपसे कोई गलती हो गई है, तो उस समय आप अपने फ्रेंड्स के पास ना जाओ, जाके पेरेंट्स के पास जाओ। भले ही आपको डांट पड़े, या भले ही आपको थोड़ी बहुत गुस्सा सहन करना पड़े, Right. लेकिन पेरेंट्स ही हैं जो आपको इन सब चीजों से बचा पाएंगे। Absolutely. अदरवाइज, एंड क्योंकि आप फ्रेंड्स के पास जाओगे, फ्रेंड्स का भी तो उतना ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट? Right. उनका भी ब्रेन उतना ही डेवलप्ड है। तो एंड वो बिलोंग टू सम अदर फैमिली, उनके फैमिली वैल्यूज अलग है, आपके अलग है, तो आपको आपके पेरेंट्स से ही सजेशंस लेने पड़ेंगे। तो इक्वली रखो, बट कैटेगराइज कर लो कि फ्रेंड्स से आप ये सारी बातें सीख रहे हो, और पेरेंट्स के पास आप इन सब बातों के लिए जा। फिर एक केस मेरे पास ये आया था कि दैट एक गर्ल थी, वो बुली हो रही थी, एंड एंड बुली एज इन उसको प्रेशराइज हो रही थी काफी। शी वॉज एन ओवर परफॉर्मर, तो उसकी टीचर्स उससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तू एनुअल डे के स्किट भी लिख दो, और ये भी कर दो, और मार्क्स भी इतने लाने हैं, इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो शी वॉज गेटिंग रियली प्रेशराइज, एंड वो ना नहीं बोल पा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि अपने मम्मी को बताओ, मम्मी ने क्या बोला, कि वेदर शी ऑल्सो वांट्स यू टू pursue so many things all together if you are getting so much burdened with this। तो बोली मैंने मम्मी को तो बताया ही नहीं है। तो लाइक क्यों, क्या हुआ, मम्मी तुमको सपोर्ट नहीं करेगी? बोली नहीं, मम्मी ऑलरेडी इतने प्रेशर में है, वो ऑलरेडी इतनी बिजी रहती है, शी इज एट हाई पोस्ट इन हर ऑफिस, वो वैसे ही बहुत बर्डन रहती है। मैं बोला नहीं बेटा, दैट इज हर लुकआउट। Yes. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वॉट एवर ट्रबल्स यू आर फेसिंग, वॉट एवर मिस्टेक्स और वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग विथ यू, यू हैव टू शेयर इट विथ योर पेरेंट। फिर आपको देखना है कि पेरेंट उसको कैसे हैंडल करता है कि नहीं करता है। वैसे ही हुआ, उसको सिर्फ बोलने की देर थी, उसकी मम्मी ने तुरंत एक्शन लिया, उसकी टीचर से बात किया, एंड सॉर्ट आउट हो गया। तो ये मैं बोल रही हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है एज अ एक टीनेजर और पेरेंट, वॉट एवर रीजन, अभी यहाँ तो जेन्युइन उसको लग रहा था कि शायद मम्मी बहुत बिजी है, मैं अपना साम लेके जाऊंगी तो वैसे ही परेशान हो जाएंगी। परेशान हुई होंगी, लेकिन नहीं बताने से वो ज्यादा परेशान थी। तो आप समझ रहे हो, माँ का जो है, मैंने उसको कहा कि माँ का जो बैंडविड्थ होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा होता है एक पेरेंट का, ऑफ टू हैंडल दीज स्ट्रेस इज वेरी बिग, और उसमें सबसे प्रायोरिटी पे बच्चे ही होते हैं। तो डोंट थिंक ट्वाइस वाइल गोइंग टू योर पेरेंट्स। डांट पड़ेगी या जो भी पड़ेगी, लेकिन सोल्यूशन आपको उधर से ही मिलने वाला है। सो दैट इज Such हाउ। a मस्ती करो heartwarming, फ्रेंड्स के साथ। right, such a हाँ, heartwarming दैट history वाज you have shared. जस्ट अ सिंपल सोल्यूशन था, उसको सिर्फ अपनी मम्मी को बताना था। मतलब हमारी तो जरूरत ही नहीं थी, मेरी जरूरत ही नहीं थी उसको, उसको सीधा Yes. जाके उससे बात करनी थी अपनी मम्मी से। This whatever you have discussed ना, इससे मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं-कहीं टीनेज जैसे अपनी मम्मी के साथ जैसे वो ज़्यादा अटैच थी कि हाँ, मम्मी परेशान हो जाएँगी।
तो वो एक तरीके का हम्म। बच्चे के अंदर लिमिटेड बिलीफ भी आ जाता है कि हाँ, अगर मैंने बताया तो मम्मी का अगर स्ट्रेस लेवल इतना है तो इतना बढ़ जाएगा। इतना बढ़ तो जाएगा। वो चीज का, ये हाँ, केस में वो, ऐसा था, यस। राइट। तो वो चीज के लिए अवेयरनेस देना, एंड इट्स गुड दैट यू स्पोकन टू योर हर मदर ऑल्सो एंड हर ऑल्सो, कि वो उस चीज को कैसे इसको टैकल आउट कर सके और हैंडल कर सके। बिकॉज वेन आई एम, मतलब आई वर्कड इन स्कूल फॉर 10 years। तो मैंने एक दो बार ना ऐसा चीज देखा था, मतलब अगर मैं ओपनली बात करूँ इस चीज के लिए, बॉयज के बारे में, तो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियोज आ जाती थी। दे यूज टू गेट क्यूरियस अबाउट दैट, कि हमको ये जानना ही होता क्या। एंड देन दे यूज टू आस्क, एंड यू वोंट बिलीव कि साइंस की टीचर तक भी उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाती थी। मतलब वो खुद इतना ज्यादा उसमें डर में आ जाते थे कि वो भी उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर पाते थे। तो बाय योर कॉन्वर्सेशन आई कैन कनेक्ट दिस कि इट्स बेटर कि बच्चों को उस टाइम पे वो चीज़ की अवेयरनेस दे दी जाए कि बेटा, हर चीज़ के लिए एक राइट स्टेज होती है आपकी, हर चीज़ को जानने के लिए। इट्स बेटर यू गेट मेक देयर एनर्जीज डाइवर्ट टू देयर स्टडीज और करियर, बजाय कि ये हम्म। ऑपोजिट जेंडर में फ्रेंडशिप करना और फिर उस चीज़ के लिए आगे इतना ज़्यादा वो पास्ट में वो ले जाना उसको। तो दे वर वेरी क्यूरियस, मतलब मेरे को तो उस टाइम भी थोड़ा शौक लगा था कि साइंस वही की है, टीचर भी तो। क्यूरियोसिटी तो होती है, क्यूरियोसिटी तो होती है, बट उनको बोलना है कि सोर्स आपका परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप गूगल ना करो, जाके अपने पेरेंट्स से पूछो। तो यस, दैट शुड बी योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट गूगल और योर फ्रेंड्स और यूट्यूब लिंक्स। तो राइट, वो एक अवेयरनेस होना और एक वो सेंसिटाइज करना बच्चों को बहुत जरूरी है, इज व्हाट आई फील। राइट, राइट। तो इन चीज़ों से मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना, अपना सेल्फ एस्टीम भी डाउन होना लग जाता है। जैसे आपने ये इस गर्ल के बारे में बताया, शी वॉज गेटिंग सो मच प्रेशराइज कि उसको नो बोलना भी नहीं आ रहा था अपनी मैडम को। कि एक होता है, एक टीचर के साथ आपका बॉन्ड भी वैसा सेट हो जाता है, और आप हम्म। इतना रिस्पेक्टफुली उनको वो कर देते हो कि आप नो नहीं बोल पाते हो। एंड वहां होती ये चीज़ है शायद कि उन्हीं की सेल्फ एस्टीम डाउन होती चली जाती है। तो आप ऐसे में बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करोगे, कैसे अपनी बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम का भी ध्यान रखें, और सामने वाले के साथ, मतलब चाहे वो टीनेजर आपस में हो या एल्डर्स के साथ, उनका रिलेशन भी ठीक बना रहे। तो ये तो बाउंड्रीज बिल्ड करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फॉर टू बिल्ड अ सेल्फ एस्टीम। तो राइट, कैसे करना है उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि क्यों करना है, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आई टेल यू हाउ। राइट, वाई? बिकॉज अभी एज अ टीनेजर आपको जाके वर्ल्ड को फेस करना है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, आपको अपने परिवार को भी साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। देन यू हैव टू फेस बुलिंग, देन यू हैव टू फेस कि पीपल आपको पुल डाउन करेंगे लोग एट एनी स्टेज। आपके थोड़ा बहुत सक्सेस आपका देख लिया, दे स्टार्ट पुलिंग यू डाउन। तो ये सब चैलेंजेस फेस करने के लिए एक ही टूल है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसको बिल्ड करने के लिए, एंड जैसे मैंने मेंशन किया कि बॉडी इमेज इश्यूज भी आजकल बहुत हो रहे हैं टीनेजर्स में, तो वो आपको पहले मतलब वो हटाने के लिए और उसमें अपना कॉन्फिडेंस कि आप अपने बॉडी को प्यार करो, लव योर ओन सेल्फ, लव योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी, उसके लिए यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट थ्री थिंग्स इज फूड, स्लीप एंड एक्सरसाइज। फूड, सब लोग बोलते हैं न्यूट्रिशियस फूड खाओ, टाइम पे खाओ, बट दैट इज ट्रू, दैट इज नीडेड, दैट इज रिक्वायर्ड। आप अभी जो आदत डालोगे अच्छे खाने की, वो लाइफ लॉन्ग आपको यूज में आएगी। एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड जो आपके बॉडी, ब्रेन, स्किन, हेयर, जो आपको एक्चुअली लगता है कि अच्छे होने चाहिए, तो दैट विल हैपन ओनली विद गुड फूड। देन राइट, अगेन स्लीप मैंने कहा, तो स्लीप तो वही है, 6 to 8 hours होना ही चाहिए। एंड 6 hours कंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब रात को आप अगर आप रात को पढ़ाई भी करते हो तो 11 और 12 के बाद में आप सो जाके 12 to 5 6 जो आवर है, आवर्स रात की, दैट यू शुड बी प्रॉपरली स्लीपिंग एंड कंटिन्यूअस स्लीप होना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल टीनेजर्स आर नॉट फॉलोइंग दिस एट ऑल। बहुत ही कम नींद हो गई है उनकी। देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, आई अंडरस्टैंड, बट फिगर आउट अ वे टू गेट बैक योर स्लीप ऑन टाइम। राइट, एंड एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन वो होता ही होगा। या बोलोगे आप मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ 10 मिनट निकालो एंड एक जुम्बा डांस कर लो। 10 minutes अ डे, मॉर्निंग में आप जब नहाने के पहले या ब्रश करते करते या
इट विल ओनली बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम। मिरर में देखो और डांस करो, खुद को देखो, या यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल, मैं अच्छा डांस कर पा रही हूँ, या शेकिंग दिस एंड दैट। तो इससे यू विल फील गुड। एंड एक्सरसाइज तो होगा बॉडी का, लेकिन यू विल ऑल्सो फील दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मैं मस्त हूँ, मैं एकदम खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, यानी स्माइल एट योर सेल्फ इन द फेस, इन द मिरर। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एवरी डे। ये तो और मैं भी करती हूँ, मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को मस्त स्माइल देती हूँ कि वाह, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ आज। तो इस तरीके से यू स्टार्ट योर डे। ये तो एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा ही है, मतलब 30-40 मिनट्स तो करना ही है। Right. And other three things is read. Read something that वो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं आजकल, और इंटरनेट पे भी जाके आप रीड करो गुड आर्टिकल्स। देयर आर गुड यूट्यूब मोटिवेटर्स जो होते हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर्स दैट यू कैन फॉलो एंड लिसन टू देम। दे डू गिव वेरी गुड एडवाइस। देन वर्क हार्ड। ओके, जो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सब से तो आएगा, लेकिन जब तक आप 100% मेहनत नहीं डालोगे इन योर करियर या पढ़ाई या जो भी आपका पैशन है, तब तक यू विल नॉट सी द रिजल्ट। सो वर्किंग हार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप लोगों से उतना बात करो, कम्युनिकेशन अपनी स्किल्स बढ़ाओ। सो Right. ऑल दीज थिंग्स, तो ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। कमिंग टू बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या होती हैं? इट इज जस्ट सिंपल बेसिक कि यू से नो टू समथिंग दैट इज नॉट इन योर फेवर, एंड यू डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट ऑल्सो लेटर ऑन। मतलब आपने नो बोल दिया, फिर बाद में अगर आप सोचते बैठोगे कि अरे यार मैंने ना नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड हैव मैनेज्ड, थोड़ा ही सही तो मांगा था, इतना ही सही तो बोला था उसने, इतना ही तो करना था। तो ये आप जो बाद में गिल्टी फील करते हो ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ बाउंड्री। देन आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। तो व्हाट इज इट? यू से नो टू समथिंग विच इज नॉट इन योर फेवर, एंड ऑल्सो नॉट फील गिल्टी अबाउट इट लेटर ऑन। Right. Right. ओके, क्योंकि फिर ही आप जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम बुलिंग, और Absolutely. क्या बोलते हैं, बैड कंपनी, और फॉलोइंग प्रे टू ट्रबल्स, या सब्सटेंस अब्यूज से आप बच सकते हो सिर्फ एक सिंपल नो से। और बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर सेइंग दैट नो। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस एंड सेल्फ एस्टीम और बाउंड्रीज, तो ये एक सर्कल है। आप बाउंड्रीज बनाओगे तो आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा, और सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा तभी आप बाउंड्री बना पाओगे। तो ये थोड़ा इंटरलिंक्ड है, but slowly you'll get there. You draw that circle slowly, slowly you'll be able to make that circle. Boundaries and self-esteem ka. So this Absolutely. is what Wow. I will suggest. Such a wonderful thing you have explained, and in such a simple words you have explained कि सेल्फ एस्टीम को कैसे वो करना चाहिए और बाउंड्रीज। और जितना मैं आपके कन्वर्सेशन से रेजोनेट कर पा रही हूँ ना, द काइंड ऑफ एफर्मेशंस यू हैव सेड आई डेली डू इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गोइंग टू माय डे इज गोइंग टू बी गुड। तो वो चीज़ें भी होती हैं। और जहाँ तक मुझे मतलब एज एन एनएलपी कोच मैंने भी देखा कि कोई भी हैबिट, क्योंकि सेल्फ एस्टीम का जितने आपने ये चीजें बताई हैं ये शायद सारी हैबिट से ही कनेक्टेड है कि हमको ये हैबिट बिल्डअप करने हैं। Build और up कोई भी करना है। हैबिट जो है 21 डेज अप्रोक्सीमेटली लेगी ही लेगी आपके अंदर वो लाने में, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो। मीन्स आज कर लिया फिर चार, जैसे आपने जुम्बा डांस का बोला, ये मैं शुरू करूंगी, आई नेवर डिड मतलब 10 मिनट मैंने कही कोई भी आप अपना गाना लगा दो और बस डांस करो, दिन भर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा अलग कॉन्फिडेंस आता है, मुझे तो आता है, तो आई एम श्योर ये बच्चों को तो आना ही है। आएगा ही तो आएगा, right? बस, नहीं ये टेक्निक मैं एंड भी देन जाके फेस करो किसी बुली को, फिर वो याद करो कि मैं तो सुबह मस्त डांस कर रही थी, ये क्यों मुझे बुली कर रहा है, ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है, भाग यहाँ से। तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस आप में आएगा। सो ओके। स्वीट, यस यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो इसके अंदर ये, और दूसरी चीज मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपके साथ एक चीज वो शेयर करती हूँ कि मेरे अंदर भी जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम में थी ना, आप लगा लो 6th 7th 8th क्लास की, मुझे नो बोलना नहीं आता था। आई वॉज हाईली 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 एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ गर्ल। और मतलब ऐसा सराउंडिंग में नहीं रहता था कि मैं क्लास में किसी से ज्यादा बात करना या सोशलाइज होना नहीं हो पाता था। वो धीरे धीरे कर करके ही जब हमने सीखा कि हाँ नो बोलने से अपनी सेल्फ एस्टीम भी बनी रहती है, प्लस आप उस तरीके से बोलो कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो, अगर वो आपका अपना है तो। कोई और है फिर तो, अगर कोई गलत काम के लिए बोल रहा है तो फिर तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता इतना।
लेकिन अगर आपका कोई अपना है या कोई क्लोज फ्रेंड है, उसने ही आपसे कुछ बात ऐसी कर दी है कि हाँ, जैसे आपने भी बोला कि फ्रेंड ने मतलब उसके टीचर ने बोला था कि ऐसे ऐसे आप बेटा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। मेरे पास भी ऐसे मतलब स्कूल में बच्चे ऐसे आते थे, दो दे वर यंग, तो उनको बताना पड़ता था कि बेटा आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो, एंड इफ यू हैव टाइम देन इट्स फाइन, नहीं है तो आप एक रिस्पेक्टफुल टोन में नो कर दो, आप नहीं करोगे किसी और से हो जाएगा, बट एटलीस्ट वो वर्क भी डेलिकेट होता है और उसका प्रोडक्टिविटी भी आती है, प्लस आपको स्ट्रेस भी नहीं होता उस चीज़ में। तो ये चीज़ मैं बहुत ही क्लोजली आपसे रेजोनेट कर पाई हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इन दिस टॉक शो, कि होती सारी चीज़ें वही हैं, बट ये है कि आप धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको आगे कर पाते हो विद द इट राइट इज अ टाइम। स्किल जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्किल, से प्रैक्टिस से ही वो बाउंड्री सेट करना आएगा आपको, बट यू राइट। हैव टू बिगिन समवेयर, छोटे छोटे नोज बोल के फिर आप बड़े नोज बोल पाओगे, तो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ वेरी अच्छी स्किल है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएगी। एंड राइट। अगेन कीप योर लव्ड वंस को भी हैप्पी करके, ऐसे दुखा के नहीं, हर्ट करके नहीं, तो दैट इज अ स्किल दैट यू लर्न एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, इज व्हाट आई वांट एब्सोल्युटली, टू दिस इज द बिगेस्ट थिंग, यस। कि आपको वो अगर आर्ट आ जाए कि हाउ टू से नो, तो फिर वो हाँ, चीज वंडर्स क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में भी, एंड इट विल गिव द पॉजिटिव प्रोजेक्शन इन फ्रंट ऑफ अदर्स आल्सो, राइट। अच्छा, एक चीज की क्वेश्चनिंग मैं और करूंगी आपसे। आपने जैसे अपना मतलब काउंसलिंग्स वगैरह आप करते हो, तो कोई भी ऐसी दो केस स्टडीज आप शेयर कर सकते हो जिसके अंदर यू हैव हैंडल द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द गर्ल्स, सेंसिटिव इश्यूज, कुछ ऐसा मतलब हाँ, तो दो एक है, एक थी है। हाँ, तो एक तो ये वाला था जो मैंने क्विकली एक सोल्यूशन दे दिया, और एक ये था कि एक आई थी एंड उसकी शी हैड अ वेरी ट्रबल्ड फैमिली लाइफ, ओके। उसकी मदर शी वाज नो मोर एंड देन शी हैड अ स्टेप मदर, एंड टिपिकल मतलब अगर वो हिंदी मूवी जैसा वो था उसका सिचुएशन, एंड देन शी ऑल्सो वॉज नॉट एबल टू स्टडी वेल बिकॉज ऑफ दैट, तो मतलब उसका था, उसकी ट्रबल मेकर थी उसकी जो स्टेप मदर थी, एंड द फादर वाज नाउ नॉट एबल टू हेल्प द डॉटर, एंड देन डॉटर एंड उसकी और एक छोटा भाई भी था, तो बोथ वे फेसिंग दैट काइंड ऑफ अ फैमिली ट्रॉमा हो रहा था उसके साथ में, एंड देन शी वाज फीलिंग लाइक कि मतलब बहुत एक्सट्रीमली शी वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन हर स्टडीज, एंड शी वाज आल्सो अ वीक स्टूडेंट, जो टीचर्स से मुझे पता चला था कि दैट शी वाज नॉट एबल टू कोप अप विद स्टडीज, राइट। तो फिर आई हेल्प हर टू आइडेंटिफाई कि देखो 10th तक तो आपको मतलब स्टडी करना ही है, तो फाइंड अ वे टू स्टडी वट एवर, शी वॉज अ स्कूल चाइल्ड 13-14 years की, तो आई टोल्ड हर टू स्टडी एंड एज मच एज यू कैन, बिकॉज ओनली पढ़ाई और योर पैशन और योर प्रोफेशन दैट यू सिलेक्ट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट। तब तक तो आप फाइनेंस फैमिली में आपको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, फाइनेंशियली है, और एक आपको फैमिली जो सिक्योरिटी मिलती है स्टेइंग इन दैट हाउस एंड ऑल, तो वो आपको सिक्योरिटी से सिक्योरिटी भी है, लेकिन जो आपको ट्रॉमा आपको फेस करना पड़ रहा है उसके लिए आपको अपने आप को अनेबल करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा बाय pursuing a passion which you if identify some skill that you have, राइट। और meanwhile also focus on your studies। वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, सम ऑपोजिट सेक्स में उसको बॉयफ्रेंड मिल गया था, एंड देन आई सेड कि होगा ये, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट जेन्युइन बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली नेगेट दीज फीलिंग्स ऑफ देयर्स, राइट। बट if he is helping you in studying and getting out of that trauma, then it is good। अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्लीज उसको साइड में रखो एंड देन concentrate on something that will help you come out of this situation। आप राइट। चेंज तो नहीं कर सकते ना, आपकी मम्मी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो ना, फादर को अभी आप चेंज कर सकते हो, दे वेर नॉट अप्रोचेबल, द पेरेंट्स वेर नॉट अप्रोचेबल, दे वेर नॉट रेडी टू हेल्प, तो फिर ये जो डॉटर थी, गर्ल थी, उसी को मैं काउंसिल कर करके नाउ मतलब पढ़ाई में शी कुड स्कोर अ लिटिल वेल, आई मीन 50s में थी, नाउ शी इज नाउ 65 स्कोर कर रही है, एंड आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विथ हर and helping her to cope up with this. So, and now she has identified that she was good in arts. So I said, "Ki we'll find out some way to get you into this field, and then you can maybe come out of it राइट। and help your brother also along with it." So राइट। था ऐसा एक केस, so I had to work for her, and
sadly parents were not ready to cooperate or and listen only, बात ही नहीं करना चाह रहे थे वो लोग मुझसे। तो ओके। टीचर्स के हेल्प से, स्कूल के हेल्प से आई कुड हेल्प दैट चाइल्ड, आई वुड से आई कुड हेल्प हर एंड ब्रिंग हर आउट। This is a lovely thing you have done, and God bless her with such a wonderful counselor. What you have done, मतलब इतना सुन के मुझे भी एकदम गूज़बम्प खड़े हो गए कि घर पे पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे लड़की के साथ कुछ भी हो जाए। मतलब हाँ, एक फैमिली एटमॉस्फेयर जब तक आप बच्चों को नहीं देंगे, वो सेफ वैसे भी अपने आप को नहीं समझेंगे। एंड टीनेज इज़ तो एज़ अ मतलब ऐसा स्टेज होता है कि भटकने में टाइम ही नहीं लगता फिर। द नहीं काइंड उसको ऑफ मिल हो गया ना, एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया था, फिर वहां से मैंने उसको उसको मैं इमीडिएटली बोल देती कि नहीं ऐसे सब रिलेशनशिप मत करो, ये कोई टाइम है एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस, तो वो फिर मुझसे भी बात नहीं करती। तो आई हैड टू, okay, I had to accept that first relationship and then also guide her कि if that person is helping you, then okay, if it is not helping you then you have to find again boundaries maintain करना and वो distraction थोड़ा कम करना, तो वो थोड़ा मुझे उसको बताना पड़ा। नहीं, अच्छा है वो चीज़ और कभी अगर मेरे को मौका मिलेगा एंड इफ शी इज़ कंफर्टेबल आई विल हैव अ टॉक विद हर आल्सो। मतलब एक तो मतलब इस टाइप की चीज़ों को तो अगर बाहर अगर अलाउ होता है तो अगर एक बाहर आते भी है ना तो एक एम्पावरमेंट बच्चे को भी आती है अंदर से कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ों को बोल के लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया, प्लस उनका खुद का भी सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, क्योंकि अंदर से जो एक फ़ियर निकल के बाहर आ जाएगा उसका। तो इट्स रियली अ हार्ट टचिंग स्टोरी व्हिच यू हैव शेयर्ड और आपको मतलब देख के ही मेरे को ही वो लग रहा है कि कैसे आपने इसकी काउंसलिंग की होगी। माय गुडनेस! Okay. Now, as we are coming to the last, means for a couple of minutes, I would like to ask any three takeaways from your side for the parents and the teenage, ताकि इनकी कनेक्टिविटी अच्छी रहे। जो आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसमें तो कनेक्टिविटी। मैं, हाँ, तो मैं उनको बोलती हूँ एक कार में ड्राइव पे जाओ, तो यहाँ पे कार स्टैंड्स फॉर सी हम्म। is for communication, ओ, A is for appreciation, लव। and R is for respect. तो लाइक कम्युनिकेशन तो है, एवरी रिलेशनशिप का बेस है। तो वही है, लोग बोलते हैं बातें कम करो, यू हैव टू आल्सो बी द लिसनिंग ईयर फॉर देम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ज्यादा होता है। पेरेंट्स हैव टू मेक दैट एटमॉस्फियर एट होम, या दे हैव टू मेक देमसेल्फ दैट अप्रोचेबल कि पेरेंट आके, बच्चा आके ये बात कर पाए उनसे। एंड ओपन कम्युनिकेशन का एक जो ब्रिज है, वो पेरेंट्स को ही स्टार्ट करना पड़ता है बिल्ड करने के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू कम एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन एंड कम्युनिकेशन ब्रिज बिल्ड करना। उनको लगता रहेगा कि हमेशा ये पेरेंट्स की तरफ से ही आना चाहिए, एंड इट इज ट्रू। तो ये होना चाहिए दोनों की तरफ से, complete communication and also listening, giving your time to listen to what the other person is saying. राइट। Then the second, like I said, appreciate the good, ignore the bad, and तो ये है। फिर यहाँ पे अप्रिसिएशन सिर्फ पेरेंट ही ना करे, बच्चा भी करे। बच्चे को भी दे ट्रू। हैव टू रियलाइज कि हाउ मच एफर्ट्स वो पेरेंट डाल रहा है टू ब्रिंग देम अप एंड टू प्रोवाइड फॉर देम। मतलब ये बोलना गलत है कि ये तो उनका फर्ज है, ये तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट देन इफ दे आर डूइंग इट, यू हैव टू अप्रिशिएट एंड एक्सप्रेस देम इन वर्ड्स, एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन इन वर्ड्स। इट विल बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है अप्रिसिएशन। तो या एक बच्चा अगर पेरेंट की तारीफ कर रहा है, जाके बोल रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड connection or bond building thing that can happen. राइट। And then respect भी म्यूचुअल होना चाहिए। रिस्पेक्ट के लिए पहले यू हैव टू एक्सेप्ट सामने वाला जैसा है, उसके पोटेंशियल या उसके वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ के साथ में उसको एक्सेप्ट करो। राइट। वो जो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको आप वैल्यू करो, एंड देन यू विल हैव दैट। तो रिस्पेक्ट बिल्ड हो गया तो फिर सब कुछ, रिस्पेक्ट है तो फिर लव है, केयर है, एंड वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आ जाती है कि व्हेन यू रिस्पेक्ट और लुक अप टू समवन, तो बस फैमिली तो कितना अच्छा हो जाएगा। एटमॉस्फेयर ही बहुत पॉजिटिव हो जाता है इन द फैमिली। राइट, सो राइट। यस, आपकी ये कार कार ड्राइविंग कार में बहुत बैठ के इंटरेस्टिंग है। ड्राइव पे जाओ। आपकी ये कार ड्राइविंग सही में बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। द थिंग इज कि ये कार ड्राइविंग पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आती है, पेरेंट्स क्या हर उसको, कि हमको टीनेज भी क्या, अगर आप यंगर वन को भी देखोगे, इफ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट दैट मीन्स यू आर गेटिंग दैट ऑल्सो बैक।
अगर आप वही रिस्पेक्ट दे मिलेगी, रहे हो तो यस। वही चीज आपको वापस मिल रही है, अगर आप गुस्से में कर रहे हो तो वही चीज आपको मिलेगी, क्योंकि बच्चों को तो यही नहीं पता कि हमको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना। करेक्ट। राइट। सो सच एन इंटरेस्टिंग कार, और इस कार के लिए हम भी आपके लिए थैंकफुल हैं कि आपने ये चीज शेयर करी। कि मुझे सो रियल कार ड्राइव करनी नहीं आती, पर ये वाली मैं ड्राइव कर लेती हूँ। मी टू मी टू मी टू, बट यस, है ना? एंड सीख ली है थैंक्स। पर आती नहीं है। राइट राइट राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग टॉक शो, कि जो आपने छोटी छोटी बातें और इतना प्रैक्टिकल टिप्स आपने शेयर किए हैं with these suggestions and your stories and this case studies. So I hope this must have helped and will be helping more and more people. And thank you so much for coming on this talk show today. माय प्लेजर, टोटली माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, रियली। And अभी मतलब ये टॉपिक तो ऐसा है जिसके अंदर अगर हम बात करना जाए ना तो इट विल टेक 1 hour and 2 मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको यहाँ स्टॉप करने का, बट सीरियसली। मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने का जैसे, बट या वील हैव टू स्टॉप, मे बी वील मीट अगेन, फिर से यस, बुलाना, फिर बात डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो कोई वो ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, सेकंड थॉट ही नहीं है इसमें। तो विल स्टार्ट अप विद द ये जो आप नेक्स्ट। कर रहे हो, इट इज अमेजिंग प्रीति जी, सीरियसली। आई मीन, मैंने सारे आपके एपिसोड्स देख लिए and सारे इतने यूनिक हैं और सारे इतने रेलेवेंट है, यू नो। एंड हर कोई इस टॉपिक्स पे बात नहीं कर पा रहा है, जो आप टॉपिक्स ढूंढ के निकाल रहे हो। और एंड जो आपके गेस्ट है वो भी ब्रिलियंट है सारे, बहुत मजा आया मुझे सबके सारे एपिसोड्स देखने के लिए। थैंक यू थैंक फॉर डूइंग दिस, रियली अप्रिशिएट। माय प्लेजर। इट्स अ स्मॉल एफर्ट टू हेल्प द पीपल ऑल्सो, कि अलग अलग मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अलग अलग प्रोफेशन से या उससे जो है ना लोग आके एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें एंड हेल्प करें, सो दैट एवरीबडी गेट द विन विन सिचुएशन, एंड सब लोग अपना एक दूसरे से हेल्प लेके आगे बढ़ते चले जाए। थैंक यू सो मच यस। फॉर दिस अप्रिशिएशन। एक कार का ये तो मुझे मिल गया आज। एंड रिस्पेक्ट भी है। एंड कम्युनिकेशन। फ्रॉम बोथ द साइड्स, from यस। both the sides. Yes. So this was the talk show with Miss Megha ji. And if you have any queries regarding your teenage problems and anything, I'll be shooting this video on YouTube, or iska link I am going to post on every social media. So you can ask her, you can contact her directly, and you can ask for help. She would be glad to help you out. Right. So thank you so much for coming all, and keep be blessed, keep smiling. Thank you so much. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय Yes. बाय।